پانی آلریڈی کم ہے, کیا جھگڑا کروانا چاہ رہے ہیں, فساد ہوگا یہاں پر, اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا اگر یہ. میں نے ابھی صبح کو ابھی آنے سے پہلے یہ خبر سنی کہ اس طرح کوئی ہائیڈرنٹ بن رہا ہے, میری نالج میں نہیں ہے, میں اس کو چیک کرواؤں گا واٹر بورڈ حکام سے, اور اگر غیر قانونی طور سے اس کو بنایا جا رہا ہے غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک پانی کے شہر میں مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں, اور مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سندھ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ ڈیولپمنٹ سکیمز کے اوپر کام کرے, جس کے اندر ہب ڈیم سے ہم پانی لے کر آئیں گے, کینجر سے 65 MGD ہم پانی لے کے آئیں گے, پلس ہم سمندر کا جو کھارا پانی ہے اس کو میٹھے کرنے کے بھی پلان کے اوپر کام کریں, اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کراچی پاکستان کا انڈسٹریل کمرشل کیپٹل ہے, آپ باتیں بہت ساری کرتے ہیں, ابھی تک 2016 سے کراچی کے اضافی پانی کی 650 MGD پانی مختص کرنے کی درخواست مشترکہ مفادات کونسل میں آج بھی پینڈنگ ہے, وفاق نے اس چیز کو اپروو نہیں کیا. میں چاہوں گا کہ کراچی والوں کو پانی کے مسائل پر ریلیف دینے کے لیے وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف K4 کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اوور آل کہہ رہا ہوں, بیکاز کراچی چونکہ پاکستان کی انڈسٹری کو چلاتا ہے, پاکستان کو زر مبادلہ کما کے دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہنگامی بنیادوں پر یہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹ وغیرہ کے اوپر ہم کام کریں, اس کے اندر وفاقی حکومت کو پروونشل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہاں کی انتظامیہ کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ اور زیادہ جدت کے ساتھ اور زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کام مکمل ہو سکے, اور کراچی والوں کا جو پانی کا یہ دیرینہ مسئلہ ہے اس کو ہم سسٹینیبل بنیادوں پر انشاءاللہ حل کر سکیں. جی سر جی. اچھا, یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے, بیکاز ہم لوگ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ریٹرک پر چلے جاتے ہیں. نہ سرفراز احمد صاحب میرے رشتہ دار ہیں, اور نہ کالج کی پرنسپل سے میری کوئی دشمنی ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو کسی چیز کو رپورٹ کرنے سے پہلے چیزوں کے حقائق چیک کرنے چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. یہ جو پلاٹ ہے یہ KMC کا پلاٹ ہے, یہ جو زمین ہے یہ KMC کی زمین ہے, اور اسی زمین پر ماضی میں جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس نے کالج تعمیر کیا, جو کہ سن 2012 میں وہ کالج کمپلیٹ ہو گیا, اور سن 2017 میں اس وقت کے میئر وسیم اختر صاحب نے سرفراز احمد صاحب کو کرکٹ اکیڈمی چلانے کے لیے جو کرکٹ گراؤنڈ یا سپورٹس گراؤنڈ والا پورشن تھا اس کو ہینڈ اوور کیا, اور 2017 سے اس کا کنٹرول سرفراز احمد صاحب کے پاس تھا. بدقسمتی کے ساتھ اس کے دو دروازے ہیں, ایک دروازہ ہے جو کہ کالج سے قریب ہے لیکن وہ گراؤنڈ سے ہوتا ہوا جاتا ہے. اگر اس دروازے کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ جو گراؤنڈ ہے وہ خراب ہوگا, جس کی وجہ سے وہ کرکٹ اکیڈمی نے فیصلہ کیا کہ وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص کسی کی زمین پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یہ تاثر غلط ہے. یہ زمین KMC کی ہے, بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہے, اور اگر وہاں پر کالج چل رہا ہے تو وہ کالج کا پورشن مختص ہے, اور اگر سپورٹس گراؤنڈ چل رہا ہے, کرکٹ گراؤنڈ چل رہا ہے, وہ کالج کا حصہ نہیں ہے, وہ الگ ہے, جس کو اس وقت کے میئر نے سرفراز احمد صاحب کو کرکٹ پرپسز کے لیے یا کرکٹ اکیڈمی کے پرپسز کے لیے ہینڈ اوور کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر منفی سیاست ہو, لوگ پروپیگنڈا کریں, ان چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. جو کالج کی پرنسپل صاحب ہیں ان کو بھی اس طریقے سے الزام تراشی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا, اور خوش اسلوبی کے ساتھ کسی کی ذات کو ہرٹ کیے بغیر حقائق کو مد نظر رکھنے کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت تھی. یہ وہ حقائق ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے ہے, تاکہ یہ جو الزام تراشی کسی شخص کی اس طریقے سے پگڑی اچھالنا, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ غلط ہے. سرفراز احمد صاحب کو گراؤنڈ وسیم اختر صاحب کے زمانے میں دیا گیا, اور وہ گراؤنڈ کالج کا حصہ نہیں ہے. تو خدا را اس طریقے سے کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے, لیکن ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, قانونی تقاضوں کے عین مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کر کے عثمان ڈار صاحب آئے ہوئے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ سندھ حکومت تعاون نہیں کرتی, کامیاب نوجوان پروگرام جو ہے اس میں بھی کوئی تعاون نہیں ہے, صحت کارڈ میں تعاون نہیں ہے, مختلف حوالے انہوں نے دیے. تو ایک تو آپ لوگوں سے تعاون کیوں نہیں کرتے, اور اسی کے ساتھ
जहां हम बैठे हुए हैं ये आप जाएंगे इस तरफ तो पूरी जो 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 इसका जो है ना घूमने फिरने के लिए जो राहदारी है आपकी तरफ से दी गई पूरा कब्जा है, सारी पार्किंग है, गाड़ियां खड़ी हैं, लोग पैदल चल नहीं सकते। पहला सवाल आपने किया पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम के रहनुमा उस्मान डार साहब के हवाले से। जिस सियासी जमात का काम इल्ज़ाम लगाना उसके रहनुमा भी इल्ज़ाम ही लगाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इल्ज़ामात से कब बाहर निकलेंगे और परफॉर्मेंस की कब बात करेंगे, काम करने की कब बात करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी नालायकियों को, अपनी गलतियों को, अपनी गलत पॉलिसीज़ को डिफेंड करने के लिए आप दूसरों को बुरा भला ना कहें। ये कहते हैं हमने सेहत कार्ड नहीं दिया, ये बात दुरुस्त है, हमने सेहत कार्ड नहीं दिया। उसकी वजह है कि सेहत कार्ड का मंसूबा तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने अपनी ATMs को फ़ायदा दिलवाने के लिए उनके दोस्त यारों के जो हस्पताल हैं उनको सरकार से बजट दिलवाने के लिए इस सेहत कार्ड का मंसूबा उन्होंने लॉन्च किया। इसके बरक्स सिंध हुकूमत तो अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक कर रही है, अपने सरकारी अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बना रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सूबाई सिंध के अंदर अगर NICVD है या गम्बट है या JPMC का साइबर नाइफ है या हैदराबाद का ऑप्थोमोलॉजी सेंटर है या कराची में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन है या गुलिस्तान जौहर में हमारा जो ऑटिज्म सेंटर है या सदर में ट्रॉमा सेंटर है हमारा, इन अस्पतालों में पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आज भी आते हैं। ये शो करता है कि शायद पंजाब में कार्डियक केयर की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। जब भी पंजाब का पेशेंट अपने दिल के अमराज के लिए सूबा सिंध आता है, खैबर पख्तूनख्वा में जिगर का, गुर्दे का पेवंदकारी सही नहीं होती, मुफ्त नहीं होती। ये चूँकि गम्बट में मुफ्त होती है तो इसलिए वो पेशेंट्स खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पास आते हैं। बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में साइबर नाइफ की फ्री फैसिलिटी नहीं है, पेट स्कैन मशीन की फ्री फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर मरीजों को पैसे देने पड़ते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन हमारे JPMC में, हमारे जिना अस्पताल में ये फैसिलिटी बिल्कुल मुफ्त है। और इसीलिए पाकिस्तान के 133 शहरों से वो पेशेंट्स हमारे शहर का, कराची का रुख करते हैं ताकि उनका मुफ्त इलाज हो सके। तो इसलिए मेरे भाई हमने सेहत कार्ड नहीं दिया, हमने किसी की जेब नहीं भरी, हमने अपने अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, बल्कि कल की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि भिटशा की एक रिहायशी खातून ने अपने लिवर को अपने खाविंद को दिया और उसकी बिल्कुल मुफ्त जिगर की पेवंदकारी गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुई। ये सिंध हुकूमत का अस्पताल है जहाँ पर हुई। आपको याद होगा माजी में ये जो गरीब पेशेंट्स थे ये हिंदुस्तान का रुख करते थे, ये इंडिया जाते थे इलाज कराने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत की बेहतर स्ट्रैटेजी की वजह से उन लोगों को हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं लेना पड़ता, उनको हिंदुस्तान नहीं जाना पड़ता, वो यहाँ पे सूबा सिंध का रुख करते हैं, खैरपुर में गम्बट जाते हैं और उनकी मुफ्त पेवंदकारी की जाती है। तो मैं समझता हूँ ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम सेहत कार्ड पर बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अमली एतबार से सूबा सिंध ने उन फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे शहरी बल्कि सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, सारे सूबों से, यहाँ तक कि इस्लामाबाद से पेशेंट्स हमारे अस्पताल आते हैं ताकि उनका मुफ्त इलाज किया जा सके। ये बता दें, अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के बाद आप क्या ऐसे मुतवक्का जो है ना वो तरामीम बल्दियाती कानून में करने जा रहे हैं, क्योंकि सिंध असम्बली का सेशन भी आपने तलब किया है, तो क्या ऐसी मुतवक्का तब्दीलियाँ हैं आप उस कानून में लाने जा रहे हैं? देख, कुछ तब्दीलियों की तरफ तो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने वाज़े अल्फाज में खुद बात की है। जब जमात इस्लामी से उनकी इंगेजमेंट हो रही थी, पाक सरजमीन पार्टी से इंगेजमेंट हो रही थी, या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ इंगेजमेंट हुई है और सियासी जमातों के साथ बात हुई, जिसमें 2-3 जो बड़े बड़े इशूज़ हैं जो सेटल हो चुके हैं इस वक्त। मिसाल के तौर पे कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बनाया जा रहा है, तो इसके लिए कानूनी तरमीम
की जा रही है। इसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन मैं आज भी समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होता कि वो सूबे के पास रहते, लेकिन चूँकि अपोजिशन की सियासी जमातों ने एतराज़ किया इस बात पर, तो हमने फैसला किया है कि ठीक है जी, उनको वापस बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिया जाए। तो इसके ऊपर कानून साजी की जाएगी। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें जिसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई भी है उसको हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जुमे को इजलास स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह दिन तय कर लिया जाएगा किस दिन उस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, और प्रेजेंट करने के बाद इंशाल्लाह जो सिंध की आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो फैसले करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये राउंड अबाउट्स पे जितने पेट्रोल पंप है KMC ने उनको जमीनें दी हुई है, आप देखते हैं ट्रैफिक भी जाम होता है, आप राउंड अबाउट जाकर कौन से राउंड अबाउट की बात करें? ये पहले तो आप सिंध असेंबली वाला देख लें। ये मेरे भाई KMC की ज़मीन नहीं है, कराची कंटोनमेंट बोर्ड है। हक़ाइक़ को जाने फिर बात करें। ये करके बैंक है, ये हबीब बैंक के साथ। जी 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 जी। ये बताइएगा, शहर में जो डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, आए रोज हम देख रहे हैं एक दिन में कुछ 6 से 7 डकैती की वारदातें हो रही है, जिसके अंदर कोई साबिक, जिसमें लोग भी जख्मी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। इसमें साबिक रेंजर्स एहलकार भी मुलविस होते हैं और साबिक पुलिस एहलकार भी मुलविस होते हैं, तो कैसे रोकथाम? वो आपने एक सिटीजन लाइसेंस क्या बनाया था, पब्लिक सेफ्टी कमीशन जी। कमीशन है। अच्छा, मैं आपके तंज का एहतराम करता हूँ, आपकी तनकीद का एहतराम करता हूँ। यही कराची शहर में एक ज़माने में बड़े बुरे हालात होते थे, मैंने हम सब ने उन बुरे हालात को फेस किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उतने ख़तरनाक हालात नहीं हैं, उस तरह की टारगेट किलिंग या टेररिज्म के अल्हम्दुलिल्लाह वाक़यात नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें इजाफा हुआ है, मंशियात की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें इजाफा हुआ है, गुटका मेनपुरी में इजाफा हुआ है। ये 3 बड़े मेजर बर्निंग इशूज़ हैं जिस हवाले से हुकूमत की पुलिस हुकाम से बात होती है, और हम बार बार जोर दे रहे हैं कि इस मामले को जिस तरह बड़े बड़े क्राइम आपने शहर में इस सूबे में हल किए, उसी तरीके से ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, मंशियात है और गुटका माफिया है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई को और मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर और ज़्यादा अग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। तो इस पर पुलिस के साथ मशावरत चल रही है। पुलिस को हम कह रहे हैं कि अपनी सर्वेलेंस को, अपनी पेट्रोलिंग को, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको आप बेहतर बनाएं ताकि इन चीज़ों को प्रीएम्प्टिवली हल किया जा सके, और इसके ऊपर काम हो रहा है। मैं पुलिस हुकाम को भी ये कहना चाहूँगा, सीनियर पुलिस अफसरान को भी ये कहना चाहूँगा कि आप सबको मैदान में उतरना होगा, आपको सड़क पर नज़र आना होगा। अगर IG, एडिशनल IG, DIG, SP खुद सड़क पर मौजूद होंगे, पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे, तो SHO को भी अंदाज़ा होगा, DSP को भी अंदाज़ा होगा कि जो पुलिस की आला क़यादत है वो खुद रैंडमली सड़कों पर नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस पर और मज़ीद बेहतर बनाई जा सकेगी। तो काम किया जा रहा है, इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। ये करके मैं ये करके आ रहा हूँ। जी जी। वहाँ पर एक मोहतरमा बेनज़ीर के नाम से पार्क है, जो कि अब थर्ड पार्टी ने उसको टेक ओवर कर लिया, वहाँ पर तख्तीम लगा दी, लेकिन अब उनके हाथ से भी निकल गया है, वो भी जो नशे अपराध है उनकी आवाज़ का बन गया। तो हम जरा ये बता दें कि वहाँ का आप दौरा कब करेंगे, तो हमारी ये ट्रांसलहरी पार्क की बात करें आप? ट्रांसलहरी पार्क की बात करें, इसको मैं चेक करवा लूंगा। आपने जो सवाल किया मैं और आसिफ बल्कि खुद चले जाएंगे, देखेंगे और गलत चीज हो रही है हल कर देंगे। जी जी बताइए। सर ज़ैनुल आबिदीन पार्क पंखा लेन में सर, कहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ कचरा, ये पंखा लेन, रंचो लेन में सर। सर वहाँ शादियाँ हो रही है और वहाँ पे जो है नशे अपराध बैठ रहा है और कचरा कुंडी बनता जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, आपने मेरी निशानदेही कराई है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे इसका एड्रेस वगैरह भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। कहीं पर भी गैर कानूनी चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये चूँकि जिस पार्क की आपने निशानदेही की है ये KMC का पार्क नहीं है, DMC का पार्क है। तो मैं जो DMC हुकाम है उनसे बात कर लूँगा, और अगर आपकी बात दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो गई हैं, 27 तारीख को आपका लॉन्ग मार्च है। शेख रशीद कह रहे हैं कि कमू शहीद बॉर्डर जो है ये क्रॉस करने के बाद ये नस्ला टावर की तरह ये गिर जाएंगे। क्या कमू शहीद के बाद वाकई नस्ला टावर बन जाएंगे या आगे जाके उन्हें गिरा के? ये शो करता है कि शेख रशीद साहब की भी सोच वो नस्ला टावर वाली है, लोगों को गिरा दो, तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। साबित कर दिया शेख रशीद ने कि उसकी सोच यही है। मैं समझता हूँ नस्ला टावर की मिसाल अच्छी मिसाल नहीं है, अफसोसनाक मिसाल है। मेरे शहर के लोगों के घर गए, इस शहर के लोगों की जमा पूंजी ज़ाया हो गई, तबाह हो गई। बजाय इसके कि उनकी मदद पर आती वफाकी हुकूमत, ना उस वक्त मदद की ना आज मदद करें। आज भी तंज के निस्तर बहा रहे हैं। शेख रशीद साहब
2007 में जब परवेज मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा थे तब कहते थे कि परवेज मुशर्रफ 10 साल तक और रहेगा। वक्त ने साबित किया कि शेख रशीद साहब की जो पेशन गोई है वो सही साबित नहीं हुई और तारीख आज भी बताती है उन लोगों का क्या हाल हुआ। तो उसी तरीके से जो लोग उस ज़माने में कहते थे कि 10-10 साल 15 साल तक ये हुकूमत रहेगी, वही लोग, एग्जैक्टली वही लोग, फवाद चौधरी साहब हों, खुसरो बख्तियार साहब हों, उमर अयूब साहब हों या शेख रशीद साहब हों, ये सब वो लोग हैं जो कि उस हुकूमत का हिस्सा थे। आज ये वो लोग अपनी वही पुरानी कैसेट को वापस चला रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम साबित करेगी और वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी हुई थी, यानी कि जमहूर कहाँ खड़ा हुआ था और ये जो सिलेक्टेड लोग हैं ये कहाँ खड़े हैं। आप साहब ये बताइए कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें कहा जा रहा है, कल पीटीआई ने कहा है कि आप पीएसपी और जमात इस्लामी के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि शहर में अब कितने पार्क रह गए हैं, साउथ में जहां आप बैठे हुए हैं डीएमसी ने पार्क पे कब्जा किया हुआ है, अपना दफ्तर बनाया हुआ है, तो आपने एमक्यूएम के दफातर तोड़ दिए, सबके तोड़ दिए आपने, लेकिन ये अभी तक कैसे कायम है? अच्छा, आपने पहला सवाल शाहिद साहब किया कि हम जमात इस्लामी से या पीएसपी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, ना इस तरह की कोई मशावरत की गई है, तो ये बात करना क़ब्ल वक्त है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और कराची शहर में बिलखुसूस मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमें पजीराई मिल रही है, जिस तरीके से लोग अब बाकी सियासी जमातों से नाला होते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हम एक बड़े अहम स्टेक होल्डर हैं और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस शहर में होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी फोर्स के तौर पर इस शहर में उभरेगी। तो मैं ये जो इत्तेहाद की बात करें, इस वक्त तक कोई इस तरह की मशावरत विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं हुई। जहाँ आपने दूसरी बात की कि पार्क बन रहे हैं, चाइना कटिंग जिनकी की गई है उनको ख़त्म किया जा रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अच्छे अमल की तारीफ़ की। अगर डीएमसी ने कोई गलत चीज़ की हुई है तो शायद साहब मैं किसी गलत चीज़ के साथ नहीं खड़ा होता, उनकी गलत चीज़ की भी नफ़ी कराएंगे, उसको ठीक कराएंगे और अगर उनका कब्ज़े उस कब्ज़े को छुड़वाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ जो पब्लिक स्पेस है वो पब्लिक की है, वो आवाम की मिल्कियत है, उसको आवाम के लिए खुले होना चाहिए। आप पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं, ये इतना बड़ा पार्क है, 1,25,000 गज पे है ये पार्क, 1,25,000 गज पे, लेकिन इस पार्क पे भी माजी में बहुत सारे लोग काबिज रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा तहकीक कीजिएगा कौन कौन लोग इसके ऊपर काबिज हैं, किस तरीके से काबिज हैं। तो मैं समझता हूँ ये माजी की गलतियों से सीखते हुए हमें अपनी ओपन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना है और उन ओपन स्पेसेस को अपने शहरियों के हवाले करना है ताकि वो उसको एंजॉय कर सके, लुत्फानंदोज हो सके। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। पीटीआई के 27 फरवरी को सिंध में एहतजाज करने जा रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट में और एहतजाज का जमहूरियत कहा जाता है, तो क्या आप पीटीआई के एहतजाज के हवाले से कोई सहूलतें फराहम करेंगे? आप क्या चाह रहे हैं, अपने बंदे उनको दे दें? नहीं, क्योंकि लोग तो उनके पास नहीं है मेरे भाई, उनके पास लोग ही नहीं है, तो उनकी मदद यही हो सकती है या सहूलत ये हो सकती है कि मैं उनका झंडा लेके खड़ा हो जाऊं, क्योंकि उनके पास तो ये बाहर निकलेंगे ना, जब अपने झंडे और डंडे वाली गाड़ी से बाहर निकलेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि एक आम आदमी इनके बारे में क्या सोचता है, एक गरीब आदमी इनके बारे में क्या सोचता है, एक मेहनतकश इनके बारे में क्या सोचता है, एक मजदूर इनके बारे में क्या सोचता है, एक किसान, एक हारी, एक मछेरा इनके बारे में क्या सोचता है। लोगों के साथ इतनी ज्यादती की है इन्होंने पिछले 3.5 साल में, ये बाहर तो निकले, इनको लग पता चलेगा कि सिंध की आवाम इनके साथ क्या करती है। बहुत शुक्रिया।